Good evening, friends. Once again, welcome to each one of you in this CASA platform where we are going to discuss, we are going to start 3 days reassessment series under Income Tax Act. So this is very important series where we are going to discuss section 148, 148A, what are the consequences due to the changes in law. And once again, the discussion on the detail would be as per the theme of the series that will be elaborated by Sachin sir. What are the today coverage and tomorrow and day after tomorrow, and our efforts would be so that everything should be clear in crystal clear manner. So before going to start, I would request Asaji to enlighten, to brief about the speaker, CA Manoj Kumar ji. Thank you, Sumit ji, and thank you, Team CASA, for giving me this opportunity to introduce our very learned speaker, Manoj sir. Welcome, Manoj sir. Friends, as Sumit ji said, Manoj sir will be deliberating on the provisions and issues relating to reassessment, specifically section 148 and 148A. And Sachin ji will be elaborating on this series and synopsis of today's webinar also. So I will be giving a brief of our learned speaker, Manoj sir. Manoj ji is a member of Direct Tax Committee of ICAI during 2020-21. He is currently member of International Tax Committee also. He is executive member of International Fiscal Association Northern Region. He has been reviewer of Tax Audit Committee of ICAI, executive member of Chamber of Tax Consultant Delhi, and he has been special invitee of Income Tax Appellate Tribunal Bar Delhi, a member of Bombay Chartered Accountant Society. He is a regular speaker at various CPE and other study circles. He also appears and argues before various forums, before AO, CIT Appeal, DRP, ITAT, and he has a success rate of 95%. That is a very good thing. He has written various articles of professional interest, which has been published in various journals, and the latest one being on decoding the allowability of late deposit of employee contribution to EPF and ESI. And another is on charitable trust, understanding the intricacy of new residency rule, section 6, subsection 1A, then demystifying section 201 of Income Tax Act. I must say these are the very recent and बहुत ही जो discussion में रहे हैं, ये उन पे लिखे हुए articles हैं. So with this, sir, I welcome you, and over to you, Sachin ji. Thank you so much, Asa ma'am, and I must say thank you to Manoj sir for accepting our invitation and deliberating on this 3-day series of section 147, and I think this is the most important series on the taxation. And as far as concerned to Manoj sir, as Asam's briefly given the profile of sir, I would like to explain one word only, that sir is an encyclopedia of taxation. But I have learned from sir so many things as far as concerned to taxation. So coming back to the series, why we have designed in this manner. So see, today is the first day of the series, and today we will discuss the provisions and issues relating to 147, 148, 148 capital A, 149, etc. Tomorrow, so these are basically the provisions what sir will deliberate relating to what the earlier law was there regarding reassessment. What is the current law? How the law has changed from earlier to new one, and what are the impact of such changes. Tomorrow, Prakash sir will take the session on practical approach to handle the notices issued by the department, because nowadays most of the chartered accountants are receiving so much of notices. So what is the impact of section 148 capital A notice? What is the impact of 48 capital A clause D notice, 148 notice? So, and what is the date, what if the notice issued prior to 31st March, after 31st March? So there's so many things. So of course, this is very important to understand how to handle such type of notices.
day after tomorrow, that is on Wednesday, Divyans Agarwal will take a very important session that how to draft the reply, because this is the most important thing where the chartered accountant generally lacking in replying to the department. And now, as we know that nowadays everything is e-proceeding, so what you say is not important, what you write is important. So you should write in such a manner that your complete version should go to the assessing officer, and he will be able to understand actually what you want to convey to the department. So in this manner, we have planned this series, and I'm very much thankful to Sumit ji for accepting my proposal and giving the approval of doing this series. So thank you, Sumit ji, and welcome Manoj sir once again. And now I'd like to hand over to Sumit ji. Thank you, Sachin ji, and thank you, Manoj sir, for accepting our invitation in the short notice, because we have talked on Saturday itself. And thanks to all participants for joining, because after their joining, this program can be successful. Special thanks to Bhupender Dikshit ji from Panipat Management Committee member. So I request Manoj ji to start the session. Over to you, Manoj sir. Just a minute. Yes, sir, you can unmute yourself. Manu sir, you can. Yes. Thank you. Sorry, dear, my apology. Some problem in laptop, so got delayed, and I'm just delivering from my mobile now. So, 148, 148A, reassessment. I think it's a good bread and butter for professional also. The 148, 148 में कुछ अच्छे केस नोटिस आते रहते हैं. We keep on fighting them. अभी लेटेस्टली चेंज हुआ 148 से हम 148 के ऊपर शिफ्ट हुए, और नए प्रोविजन और पुराने प्रोविजन में क्या फर्क है इसको समझने के लिए आज हम सब यहाँ पर हैं. सबसे पहले क्वेश्चन मैं पुट अप करता हूँ. वैसे तो आप सब लोग वेल नोन अबाउट 148. व्हाट इज द रोल ऑफ सेक्शन 148, 147, 149? इस सेक्शन का रोल क्या है? क्या ये सेक्शन असेसमेंट करते हैं? क्या बेसिकली व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सेक्शंस? I would like to ask to the chat box, maybe someone share, what is the role of these sections? Anyone? To find concealed income. Okay. Next one, issue notice. Anyone else? Reassessment. Further. अच्छा ये बताइए सेक्शन असेसमेंट करते हैं, क्या करते हैं? I know I'm unjustified कि मैं आपसे बिना डिस्कस के पहले क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, बट ऐसे हम सब वेकअप हो जाएंगे. तो क्या इन सेक्शन में असेसमेंट होती है? प्रोसीजर टू इशू नोटिस टू डू असेसमेंट. ओके, लेट मी कम टू यू. सेक्शन 147, 148, 149. These sections give the jurisdiction to assess. They are not in itself an assessment section. Assessment section जो है वो है 143. हमारा जो assessment होता है 143(3) में ही होता है या 144 में होगा. 147, 148, 149 give the jurisdiction to the assessing officer to reopen your case, which is an old one, which has time barred under the ordinary assessment process 143(3). So these are the judicial section 147, which keep the jurisdiction to assess or reassess your income. That is the first step in the reassessment, rightly said by Sanjeev Jain. Now, earlier, as we know, 148 के अंदर process था जो GK and Drive Shot में सुप्रीम कोर्ट ने lay down किया था. वो क्या था कि आप सबसे पहले एओ अपने रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करेगा, कमिश्नर से उसका अप्रूवल लेगा, उसके बाद वो 148 का नोटिस इश्यू करेगा. 148 का नोटिस इश्यू होने के बाद असेसी अपनी रिटर्न फाइल करेगा. फिर एओ
जो ने रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड किए हैं, he will hand over to the assessee. Assessee will file the objection. Then AO will dispose of that objection, and after that the assessment process will start under 143(3) or 144. अब इस प्रोसेस में क्या चेंज आया है? कुछ लोगों को लगता है जो नया 148 आया है इसके अंदर तो हमारे को इसके अंदर सबसे बड़ा देखिए रीजन टू बिलीव गायब हो गए हैं। अब ये रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड नहीं करेगा, एम्पल पावर आ गई है एओ के पास रीओपन करने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इन माय व्यू अब रीओपनिंग और भी टफ हो गई है एओ के लिए, और जस्टिफाई करना रीओपनिंग को और भी टफ हो गया। हम इन सेक्शनों को स्टार्ट करते हैं 148। जब ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ तो मेमोरेंडम में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन आ रही है, हम उसके थ्रू वी आर एबल टू असेस कि कौन अपनी क्या रिटर्न फाइल कर रहा है, क्या नहीं फाइल कर रहा है। और जो हम ये नया सिस्टम लेके आ रहे हैं ये रिड्यूस करेगा लिटिगेशन को, और टाइम लिमिट जो है वो हमने रिड्यूस कर दी है। जो पहले 6 साल हुआ करती है उसको हमने 3 साल कर दिया है। ना तो ये प्रोविजन रिड्यूस करेगा लिटिगेशन को, इन माय व्यू दिस विल फर्दर एनहांस द लिटिगेशन एंड नाउ देयर विल बी मोर लिटिगेशन इन कंपैरिजन टू अर्लियर इयर्स। अभी तो नोटिस सेक्शन आया ही है 148A और 148। अभी आपने देखा 19,000 नोटिस ऑल ओवर इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज हो गया, और दिल्ली हाईकोर्ट ने इन सिंगल प्ली 1300 नोटिस क्वेश किए, विच वाज ए डिस्प्यूट 148A 148। आगे क्या होगा अभी हम जो देख रहे हैं असेसमेंट जिस तरह से हो रही है उसमें तो लिटिगेशन इसमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा हम लोगों को। और जो इन्होंने कहा कि टाइम लिमिट रिड्यूस हुई है, बल्कि 3 साल से 10 साल इन्होंने कर दिया असेसमेंट को। जहाँ 50 लाख से ऊपर के असेसमेंट है उसमें भी इन्होंने अपने फेवरेबल करने की कोशिश की है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 147 जो नया ड्राफ्ट हुआ उसमें क्या कहा? उसमें उन्होंने कहा कि द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द केस ऑफ एनी असेसी हैज एस्केप्ड असेसमेंट फॉर एनी असेसमेंट ईयर। मतलब अब ये वर्ड नहीं है द एओ हैज ए रीजन टू बिलीव दैट द इनकम हैज असेसमेंट, बट इन्होंने कहा कि यदि कोई इनकम एस्केप हो गई है तो ये डिटरमाइन कौन करेगा इनकम एस्केप हो गई है, कि 147 तभी इन्वोक हो सकता है जब इनकम एस्केप हो गई हो। तो स्टिल तो उन्होंने आगे डिफाइन किया, जब हम पढ़ेंगे कि किस केस में हम ये कहेंगे कि इनकम एस्केप हो गई है। दे हैव गिवन थ्रू एक्सप्लेनेशंस द लिस्ट ऑफ दैट केसेस वेयर दे विल से वेयर द इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। फर्दर उन्होंने ये कहा एक्सप्लेनेशन लाके कि फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट or recomputation under this section, the assessing officer may assess or reassess the income in respect of an issue which has escaped assessment, and such issue comes to his notice subsequently in the course of proceedings under the provision of section 148A. Now there is a catch over here. जो 147 का एक्सप्लेनेशन आया उसने ये कहा कि आप वो इनकम का असेस कर ही सकते हो जिसके लिए आपने 148A का प्रोसेस फॉलो किया। वो हम क्या 148A का प्रोसेस वो हम आगे देखेंगे। यदि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स कोई नया इशू आता है तो उस केस को भी आप एडिशन कर सकते हो, लेकिन दोनों के वर्ड में जो बीच में वर्ड हुआ वो एंड यूज हुआ। अगर आप 147 पुराना रिमाइंड करेंगे उसमें क्या लिखा था, इफ असेसिंग ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट any income has escaped assessment, then he assessed that income and also another income. तो सवाल ये उठा था क्वेश्चन कि क्या जिस इश्यू पे केस खुला यदि उस पर एडिशन नहीं होता तो क्या किसी दूसरे इश्यू पे एडिशन हो सकता है? तो उसमें 2 जजमेंट मैं रेफर करूंगा, बहुत फेमस थे, दिल्ली हाई कोर्ट रैनबैक्सी लैबोरेटरी एंड ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट जेट एयरवेज, जहां उन्होंने ये कहा कि यदि आपने जिस इश्यू पे केस खोला उसको आप एडिशन नहीं कर सकते तो आप दूसरे इश्यू पर भी एडिशन नहीं कर सकते। वो चीज आज भी सस्टेन है, क्योंकि आज भी वर्ड एंड यूज है कि एंड सच इश्यू कम्स टू द नोटिस ऑफ द असेसिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो लॉ इस रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हुआ है। अब इन्होंने 148 सेक्शन लेके आया, उसमें इन्होंने क्या लिखा
इन्होंने लिखा बिफोर मेकिंग द असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन अंडर सेक्शन 147 एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148A। 148A हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली असेसमेंट से पहले एक तरह की प्री SCN है, शोकॉज नोटिस है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है और हम उसको ऐड क्यों ना करें। जैसे आप पहले क्या हो करता था, पहले आप रिटर्न फाइल करते थे, उसके बाद आपको पता चलता था कि ईओ के पास रीजन क्या है। बट इस नए प्रोसेस के अंदर आपको पहले रीजन मालूम होगा कि आपका रीजन पहले मालूम होगा कि भाई मेरी किस बेस पे मेरा केस आगे 148 में खुले जाना है या किस बेस पे मेरा केस आगे असेस होने वाला है। सो दैट when you will file the return in response to 148, you are well aware how to file the return or what to disclose, not to disclose in the return. तो इस वे में ये एसएससी के लिए फेवरेबल प्रोसीजर है। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि बिफोर मेकिंग द असेसमेंट और रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन अंडर 147 एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 148, यानी कि वो प्रोसेस पहले खेलना पहले फॉलो करना मैंडेटरी है। A notice along with a copy of order passed if required under clause D of section 148A। ये पूरा प्रोसेस मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। Then he will require him to notice issue करेगा, requiring to furnish a return within such period and maybe prescribed in the notice। तो यहाँ तक ओवरऑल प्रोसेस वही है जो पहले था, यहाँ कोई चेंज नहीं आया। लेकिन इन्होंने ये कहा कि 148 आप तब तक इशू नहीं करोगे जब तक कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो which suggests that the income chargeable to has chargeable tax has escaped assessment। अब यहाँ पे बड़ा वंडरफुल चीज नोट करने वाली है। इन्होंने कहा which suggest, यानी कि there should be information which suggests that the income chargeable to tax has escaped assessment। यानी कि suggest word खाली सिंपल वर्ड नहीं है, it to a great extent plays a very devil role। अब मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आई है उसके पास कि मनोज जी ये प्रॉपर्टी आयोग के पास इंफॉर्मेशन है कि फलाने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, तो प्रॉपर्टी खरीदना इन इटसेल्फ कैन नॉट सजेस्ट कि भाई इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज असेसमेंट। देयर शुड बी मोर देन दैट विद द असेसिंग ऑफिसर कि हाउ देयर कैन बी एन एस्केपमेंट ऑफ इनकम। सिंपली इट्स अ डंप इंफॉर्मेशन व्हिच देयर इज नो सजेस्ट दैट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज असेसमेंट। आपको याद होगा there are certain judgments under the old 148 जहां पर किसी ने बैंक में कैश जमा कराया 5 लाख का 10 लाख का रीओपनिंग हो गई, आपने कैश जमा कराया आपके असेस और इससे इनकम आपकी एस्केप है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जी कैश जमा कराना इटसेल्फ डज नॉट इंडिकेट कि इनकम एस्केप हो गई है। कोई भी सोर्स हो सकता है, मेरी एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है, मैं कुछ भी मुझे गिफ्ट मिल सकता है which may be not be taxable। हाँ, a deposit of tax in an account does not indicate that decision escaped income of the assessee। तो in my view हम suggest word को इतना lightly नहीं ले सकते। अच्छा, 148 में एक और पैरामीटर ऐड किया गया कि 148 इशू करने से पहले उसे स्पेसिफाइड अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। स्पेसिफाइड अथॉरिटी कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उन्होंने एक चीज और भी ऐड कर दी फर्दर प्रोविजन इस साल 2022 में कि स्पेसिफाइड अथॉरिटी की परमिशन की जरूरत नहीं है यदि जब आपने 148A के अंदर ऑर्डर पास किया और वहां पर अप्रूवल ले रखा है। मेरे हिसाब से भी इससे प्रॉपर है ये इस तरह का प्रोविजन लेके आना। यहाँ पे अगर हमने 148A(1)(d) के अंदर ऑलरेडी प्रिंसिपल कमिश्नर परमिशन ले रखी है कमिश्नर की, तो यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं थी। तो इट्स गुड इन अलाइनमेंट विद द सेक्शन, तो इसका अच्छा अमेंडमेंट है ये। अब एक एक्सप्लेनेशन लेके आए। एक्सप्लेनेशन के दौरान उन्हें बताया कि किस इंफॉर्मेशन होगी जो सजेस्ट करेगी कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। अच्छा, वहां पे इन्होंने बड़ा अच्छा वर्ड किया, इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। मींस का मतलब ये हुआ कि इसके अलावा किसी और के बेस पे केस आपका रीओपन नहीं हो सकता। अगर आप पहले सेक्शन 148 में जाएंगे तो एक्सप्लेनेशन 2 हुआ करता था, दैट सेज इंक्लूड्स, मींस कि इंक्लूड्स है इसके अंदर, उसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन के बेस पे अगर कोई हमें लगता है इनकम एस्केप है तो हम खोल सकते हैं। तो यह एग्जॉस्टिव लिस्ट है और वहां पे एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं थी। तो टू दैट एक्सटेंट ये सेक्शन असेसी के लिए ज्यादा फेवरेबल है।
लेकिन इस बार जब ये अमेंडमेंट लेके आए तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन को अमेंड कर दिया, लास्ट ईयर लेके आए और इसके अंदर कुछ नई चीजें और ऐड कर दी और पुरानी चीजों को जो ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में लेके आए थे कि किन बेसिस पे हम कहेंगे कि इनकम एस्केप हो चुकी है, उनको अपने फेवर के लिए अमेंड कर दिया। जैसे इसका जो क्लोज 1 था वो कहता था एनी इंफॉर्मेशन फ्लैग्ड इन द केस ऑफ एसएससी फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर्स in accordance with the risk management strategy formulated by the board from time to time. तो जो information flagged in the case of an SSC का flag word हटा दिया, इन्होंने कहा any information in the case of SSC, क्योंकि flag word नहीं लगा कि dispute क्रिएट करेगा कि information flag ही नहीं हुई, आपको पूरा flag हुई है। तो उन्होंने इस पॉइंट को देखते हुए flag word को हटा दिया, इन्होंने कहा any information जो कि risk management strategy थ्रू आई हो उसके बेस पे रीओपनिंग हो सकती है, बट दैट इंफॉर्मेशन खाली सफिशिएंट नहीं है रीओपनिंग के लिए। दिस इंफॉर्मेशन विल, हम आगे देखेंगे कि ये इंफॉर्मेशन आगे प्रोसेस होगी टू रीच टू ए कंक्लूजन कि ये इनकम एस्केपमेंट है या नहीं है। सेकंड क्लोज जो लास्ट टाइम था, पॉइंट सेकंड क्लोज एक्सप्लेनेशन 1 का, वो था एनी फाइनल ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द सीएजी टू द इफेक्ट that the assessment in the case of an SSC for the relevant session year has not been made in accordance with the provision of this act. तो इन्होंने जो किया any final objection में final word को डिलीट कर दिया क्योंकि फाइनलिटी कुछ होती नहीं इनको लगा, और यहाँ दिया any audit objection और वहां भी इन्होंने CAG गायब कर दिया। अब तो any audit objection to the effect that the assessment in the case of an SSC for the relevant assessment year has not been made in accordance with the provision of this act. तो इट मींस किसी तरह का भी कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन आए उसके बेस पे रीओपनिंग ये कर सकती है। अब इसके द्वारा इन्होंने बहुत सारे जजमेंट जो है वो ओवरराइड कर दिए। आपको याद होगा पुराने 148 में ये था कि ऑडिट ऑब्जेक्शन के बेस पे रीओपनिंग नहीं हो सकती। लार्सन टोब्रो का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। ऐसे बहुत सारे जजमेंट थे जो ये कहते थे कि ऑडिट ऑब्जेक्शन के ऊपर रीओपनिंग नहीं हो सकती। ये सब जजमेंट ओवरराइड करती है। तीसरा क्लोज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस साल कि कब कहेंगे कि मींस इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट हो चुकी है। उन्होंने कहा एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर एन एग्रीमेंट रेफर टू सेक्शन 90 और 90A ऑफ दैट, यानी कि जो फॉरेन कंट्रियों से चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं और उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है जैसे मालूम चलता है कि इंफॉर्मेशन इनकम एस्केप हो चुकी है, उस बेस पे भी रीओपनिंग हो सकती है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो इंफॉर्मेशन ए को अवेलेबल कराते हैं अंडर द स्कीम नोटिफाइड अंडर सेक्शन 135A। 135A इज ई वेरिफिकेशन स्कीम। जो कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी पहले वो वेरीफाई होगी और वेरीफाई होने के बाद ए को दी जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड, इट इज ऑलरेडी नोटिफाइड ई वेरिफिकेशन स्कीम। Third, any information which requires action in consequences of which requires action in consequences of the order of a tribunal or court। यदि कोई कोर्ट का ऑर्डर है या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है उसके बेसिस पे कोई हमें यदि एक्शन लेना है तो उसके बेसिस पे भी रीओपनिंग हो सकती है। ये इन्होंने वाइड ओपन कर दिया पंडोरा रीओपनिंग का। अब यहाँ पे वेदर जुडिशियल कोर्ट की बात होगी या नॉन जुडिशियल कोर्ट की बात पे भी रीओपनिंग हो सकती है। ये पंडोरा बॉक्स है खुद में क्लॉज 5 एक्सप्लेनेशन 1 का। और फिर क्या ये लीगल पॉइंट के केस में एप्लीकेबल होगा या ये एसएससी के लिए ही एप्लीकेबल जिस एसएससी केस ऊपर ऑर्डर रहा है ट्रिब्यूनल का या हाई कोर्ट का, या ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये अभी ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब हमें आगे मिलेगा जब ये इस तरह की रीओपनिंग होगी और कोर्ट इसको इंटरप्रेट करेंगे। इन माय व्यू, हम्बल व्यू, it must be limited to the judicial court only judgment only and may be limited in the case of an assessee itself, जिसे केस में वो हुआ है, but not all. But let us see, अभी आगे इसके बारे में मतलब चलेगा। It's untested now. एक एक्सप्लेनेशन 2 और ऐड कर दिया इन्होंने 148 में। उसमें इन्होंने कवर किया एक्सप्लेनेशन 2 में सर्च केसेस को जिसके यहाँ सर्च हुई या सर्च का डॉक्यूमेंट मिला किसी दूसरे पर्सन का, यानी कि 153A एंड 153C। सर्च असेसमेंट को खत्म करके इन्होंने 148 में उसको मर्ज कर दिया। 1 अप्रैल 2021 के ऑनवर्ड कोई भी सर्च होगी, अब उसका जो असेसमेंट होगा 148 में होगा,
153A, B, C में नहीं होगा। वो इन्होंने इनको खत्म कर दिया सेक्शनों को। अब ये नए सेक्शन आ गए। इसमें इन्होंने एक बदमाशी और करी। एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर 4 क्लोज थे और क्लोज 2 में सर्वे को कवर किया गया था, लेकिन 2 चीजें छोड़ी गई थी सर्वे की। एक जो TDS का सर्वे होता है और एक सर्वे जो एक्सपेंडिचर का होता है, जैसे कोई मैरिज है, कोई इवेंट, उसमें क्या पार्टी जब वो ओवर हो जाता है तो उसमें जाके सर्वे करती है कि भाई जितना एक्सपेंडिचर आपने डिक्लेयर किया उससे ज्यादा तो नहीं किया हुआ। तो ये 2 चीजें पहले एक्सक्लूड की थी 148 के अंदर, जो 2021 में ओरिजिनल 148 आया था। इन्होंने यहाँ क्या किया कि इन्होंने सर्वे के जो TDS का सर्वे है उसको तो एक्सक्लूड कर दिया इससे, एक्सप्लेनेशन 2 से, लेकिन जिस सर्वे होता है ऑन द बेस एक्सपेंडिचर इनकर, इवेंट में कोई खर्चा हुआ, उसको एक्सक्लूड नहीं किया, उसको इंक्लूड ही कर दिया। मीन्स कि यदि कोई सर्वे हुआ किसी मैरिज फंक्शन का, वहां पता चला कि जी इन्होंने जो डिक्लेयर खर्चे किए 5 लाख लेकिन है एक्चुअली 50 लाख, तो वो केस भी यहाँ एक्सप्लेनेशन 2 में कवर हो जाएंगे और उनकी भी रीओपनिंग हो जाएगी। अब इन्होंने यहाँ फर्दर इन्होंने क्या किया, अब इन सेक्शन में 4 क्लोज आए। 153A को कवर किया, 153C को कवर किया और इन्होंने सर्वे को कवर किया। फिर इन्होंने, अगर आपको याद होगा, 153C में डिस्प्यूट हुआ करता था कि उसमें लॉ था कि भाई अगर A के यहाँ सर्च हुई और C का डॉक्यूमेंट मिलता है तो पहले जो A का AO है वो सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करेगा कि डॉक्यूमेंट C के हैं, फिर C का असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करेगा। यानी कि दोनों का सेटिस्फेक्शन मैंडेटरी था और उस पर काफी जजमेंट दिया है। बट इस नए प्रोविजन में दोनों का सेटिस्फेक्शन खत्म कर दिया गया है। सिर्फ एक ही अथॉरिटी का सेटिस्फेक्शन नोट होगा और वो उसका होगा असेसिंग ऑफिसर ऑफ द असेसिंग। यानी कि जिसका डॉक्यूमेंट मिला एक ही सर्च में, एक ही सर्च हुई, बी का डॉक्यूमेंट मिला तो बी के असेसिंग ऑफिसर की ही सेटिस्फेक्शन चाहिए, एक का सेटिस्फेक्शन अब नहीं चाहिए, वो इन्होंने खत्म कर दिया। फिर इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने पहले क्या था, सेक्शन कहता था द असेसिंग ऑफिसर शैल बी डीम्ड टू हैव इंफॉर्मेशन व्हिच सजेस्ट दैट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट in the case of the assessee for the 3 assessment years immediately preceding the assessment years relevant to the previous year in which the search took place। अब इन्होंने इस सबको हटा दिया 3 साल की पीरियड को। नहीं तो पहले इंटरप्रिटेशन ये निकल रही थी कि सर्च सर्वे के केस के अंदर 148 का नोटिस नहीं चाहिए, सीधा 148 इश्यू हो सकता है सिर्फ 3 साल के लिए, तो इन्होंने 3 साल को हटा दिया। तो इट मींस इन दिस केस इन्होंने क्या लैंग्वेज करी, the officer shall be deemed to have information which suggests the income chargeable to tax has escaped assessment in the case of the assessee where the search is initiated or books of account or the documents are found or requisitioned। यानी कि डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए या मिले उस केस के अंदर it will be deemed that the income has escaped assessment और 148A का प्रोसेस ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इसके अंदर भी स्पेसिफाइड अथॉरिटी अप्रूवल की बात की गई और स्पेसिफाइड अथॉरिटी क्या है वो 151 के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखें तो एज ऑन टुडे इन माय व्यू काबुल चावला स्टिल होल्ड द फील्ड। काबुल चावला आज भी होल्ड रखता है और विदाउट इंक्रीमेंटिंग मटेरियल्स कोई एडिशन नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि कोई डॉक्यूमेंट मिला, कोई एस्केपमेंट हुई तभी होगी, अदरवाइज नहीं है। तो document, there must be document which belong to the assessee, there must be document pertain to the assessee or relate to the assessee. So means there must be some increasing material which should also be in existence today. तो पुराना 153 और आज का 148 in both the case of search में सेम है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं 148A के अंदर। 148A को लाने एक बड़ा वेलकम स्टेप है। पहले जब हमारे पास 148 का नोटिस आता था तो मंदेरे में होते थे कि यार कौन सी इनकम मेरी एस्केप हो गई है, कौन सी नहीं हुई है, एक के पास क्या इंफॉर्मेशन है, मुझे तो मालूम ही नहीं। यदि आप देखेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा जजमेंट दिया था, हालांकि जीकेएन के बाद ओवरऑल जजमेंट, उन्होंने कहा था कि जब 148 का नोटिस भेजते हो तो आप रीजन टू बिलीव भी भेजो, सो दैट असेसी नोज कि भाई मेरा केस क्यों 6 साल में खुला जा रहा है, मैंने से कौन सा क्राइम कर दिया। और उसको एक जजमेंट में दिल्ली आईटीटी ने भी फॉलो किया था, बट बिकॉज ऑफ द
जीके एंड डैशर तो वो लोग सेटल हो चुका है कि आपको रिजेक्टिवली बाद में मिलेंगे, बट यहाँ 148A को लाके उन्होंने उस इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को रिवाइज कर दिया कि भाई पहले आपको रीजन दिए जाएंगे, देन उसके बाद असेसमेंट होगी। इसके इन्होंने 4 क्लोज रखे। पहले क्लोज में उन्होंने कहा कि AO shall before issuing any notice under 148 means shall means 148A का नोटिस मैंडेटरी प्रोसीजर है, ये ऑप्शनल नहीं है आपके लिए कि आप पहले इंक्वायरी कंडक्ट करोगे या नहीं करोगे। कंडक्ट एनी इंक्वायरी if required with the prior approval of the specified authority। यहाँ जगह जगह देखिए स्पेसिफाइड अथॉरिटी अप्रूवल की बात की गई है। ये भी खुद में क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्योंकि यदि आपको याद होगा 151 के ऊपर जो पुराने जजमेंट 148 में थे कि जब अथॉरिटी कोई अप्रूवल देती है तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहिए, बिना नहीं कि वो ठप्पा लगा दिया यस अप्रूव्ड, यस अप्रूव्ड, यस इट्स अ फिट केस। देयर शुड बी रीजन रिकॉर्डेड बाय द ऑफिसर कि व्हाई इज अप्रूविंग कि भाई इट्स अ फिट केस फॉर इशूइंग द नोटिस अंडर 148। तो इन माय व्यू जहां जहां यहाँ पे स्पेसिफाइड अथॉरिटी की बात की गई है वहां भी वो सब लॉ अप्लाई होगा, और जब सब लॉ अप्लाई होगा, और हम सब जानते हैं कि जनरली कमिश्नर 151 की सेक्शनिंग जो करते हैं विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड ही होती है, तो खुद में एक डिस्प्यूट रहेगा टाइम में। मैंने आज तक इतने केस 148 के हैंडल किए, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई अप्रूवल नहीं मिला जहां मैं कह सकूं कमिश्नर ने अप्लाई किया माइंड को। कई जगह तो देखने को मिला क्योंकि एओ ने सेटिस्फाई कर लिया है और एओ सेटिस्फाइड है इसलिए फिट केस फॉर शॉर्ट नोटिस, यानी कि एओ सेटिस्फाइड है इसलिए फिट केस है। मतलब मेरा सेटिस्फैक्शन तो कहीं है ही नहीं। दिस इज द वे द सीआईटी अपील हैज रिटन ओवर इट। और एक केस में तो ये था कि दिया द केसेस 20 केस की लिस्ट लिखी, प्लीज इशू नोटिस 148। इस तरह के मतलब अप्रूवल आए हैं कमिश्नर के द्वारा। तो इट रेजेस द दिमाग में क्लैरिटी होता है कि इस तरह माइंड को अप्लाई किया जाता है इन लोगों के द्वारा। तो क्या ये जितने इन्होंने कहा अप्रूवल चाहिए, मतलब गवर्नमेंट हैज ब्रॉट दिस प्रोविजन विद अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कि यार लिटिगेशन घटे, अब एक एक केस प्रॉपर्ली सिलेक्ट हो, लेकिन इसको देख के तो लगता है कि इतने सारे अप्रूवल के साथ हर जगह पे चैलेंज होगी ये चीज। तो इन्होंने क्या कहा, पहला स्टेप क्या, कंडक्ट एनी इंक्वायरी इफ रिक्वायर्ड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी, यानी पर अप्रूवल चाहिए with respect to the information which suggests that the income chargeable to tax has escaped assessment। तो इनकम चार्ज यानी कि ये कौन सी इंफॉर्मेशन है जो अभी हमने 148 के अंदर एक्सप्लेनेशन पढ़ा कि भाई एक्सप्लेनेशन 1 एक्सप्लेनेशन 2, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन 1 अप्लाई होगा, एक्सप्लेनेशन 2 क्योंकि सर्टेन सीजन सर्वे के लिए है तो वहां पे 148 की जरूरत नहीं है, वो भी हम आगे भी देखेंगे। तो जो 5 क्लोज थे वहां पे क्या क्या थे, इंफॉर्मेशन हो कोई भी रिस्क मैनेजमेंट में, या फिर कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन हो, या फॉर एक्सचेंज किया हो इन्फॉर्मेशन विद अदर कंट्री उसमें मिली हो, या फिर 135 में आई हो, या ट्रिब्यूनल की ऑर्डर हो, ये कोई इन्फॉर्मेशन ईओ के पास आती है तो इन्फो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी। अब यहाँ पे इन्होंने इफेक्ट को रिक्वायर्ड कर दिया। जब मैंने पूछा क्या इफ रिक्वायर्ड का मतलब क्या, तो उन्होंने कहा ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है असेसिंग ऑफिसर के लिए। मेरा व्यू ऐसा नहीं है। जब कोई भी लेजिस्लेचर कोई वर्ड लेके आते हैं इसकी सिग्निफिकेंस होती है। इफ रिक्वायर्ड का मतलब यह है कि यदि इंफॉर्मेशन इटसेल्फ में कंप्लीट नहीं है तो ही मस्ट कंडक्ट द इंक्वायरी, बट इफ द इंफॉर्मेशन सेल्फ स्पीकिंग लॉट्स ऑफ एविडेंस एंड लॉट्स ऑफ मटेरियल, देन यहाँ पे आप इंक्वायरी ना कंडक्ट करो तो सफिशिएंट है। तो आई रीड इफ रिक्वायर्ड लाइक दिस। इसका क्लोज बी आया, बी में उन्होंने कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने के पास आई या जो भी आपने इंक्वायरी कंडक्ट करी वो आप एसएससी को प्रोवाइड करोगे, कन्फ्रंट करोगे, जिससे वो आपको बताए कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन है ये इसका सोर्स ये है और ये मेरी एस्केप इनकम नहीं है। इसके लिए उन्होंने टाइम दिया 7 से 30 दिन का, कि वो टाइम देता 7 से 30 दिन का टाइम दे सकता है और उस टाइम को बढ़ा भी सकता है। आज की डेट में जितने भी नोटिस आए अधिकतर में 7 दिन का टाइम ही दे रखा है, और 7 दिन के बाद ये विंडो बंद कर देते हैं और अपना रिप्लाई फाइल नहीं कर पाते। तो दिस इज शेयर मिसयूज ऑफ द प्रोविजंस। तो जो आत्मायन इंस्ट्रक्शन की उसको पूरी तरीके से कुचला जा रहा है। यहाँ पे पर्पस था कि एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो चली गई, वो रिचुअल्स ही रह गए जो पहले हुआ करते थे। फिर इन्होंने सी ऐसा क्लोज सी 148 का
उसने कहा कंसीडर करेगा रिप्लाई फर्निश्ड बाय द असेसर। अब इस वर्ड का कंसीडर का मतलब क्या है? Honorable Supreme Court in the case of Divisional Personnel Officer Southern Railway and T.R. Chalapan said, consider means there should be active application of the mind and further observed that the term consider postulates consideration of all the aspects. So it means आप सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हो, सारे मैटर को ध्यान में रखते हो ऑर्डर पास करोगे। आप कोई रिचुअल नहीं कर सकते कि बस ठीक है रिप्लाई दे दिया, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, 148 फिट केस है। तो ये सारी चीजें जब आप लिटिगेशन में जाएंगे कि वर्ड कंसीडर का मतलब क्या है, फिर उन्होंने डीप और क्लोज लाए कि ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल अवेलेबल AO 148A 148A 1D के अंदर ऑर्डर पास करके विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर केस के अंदर 148 इशू हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे पूरी स्टेज पर पूरा कंसीडर हो चुका है और 148 1D में यदि फिट केस माना जाता है तो मेरे ख्याल से 148 इशू करते हुए फिर अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, तो वो वहां से रिमूवल करना एक प्रॉपर प्रोविजन था। अब हो क्या रहा है कि जो चार हमने स्टेप पढ़े कि पहले इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, फिर अपॉर्चुनिटी देगा, फिर रिप्लाई को कंसीडर करेगा, फिर ऑर्डर पास करेगा, ये सब एक रिचुअल के वे में हो रहा है। ना तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आई एम फाइंडिंग जो ऑर्डर आता है उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कन्फ्रंट ही नहीं की जाती है। आप जो रिप्लाई फाइल करते हैं वो कंसीडर ही नहीं होते, विदाउट कंसीडरेशन रिप्लाई ऑर्डर पास हो रहे हैं। इवन समटाइम्स तो इट इज फाउंड आपने रिप्लाई दिया है, ये लिख रहा है कि असेसी ने रिप्लाई फाइल नहीं किया, तो इस तरह से ऑर्डर पास हो रहे हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और उठता है कि जो ये 148A 1D का ऑर्डर है, क्या इसकी अपील फाइल हो सकती है? तो इन माय व्यू नो, इसके अगेंस्ट आप रिट में जा सकते हैं। पहले भी जो ऑब्जेक्शन डिस्पोजल का ऑर्डर था उसके अगेंस्ट आप रिट में जाते थे, तो ये भी एक तरह का ऑब्जेक्शन डिस्पोजल है आपका, और इसके अगेंस्ट भी आप रिट में जा सकते हो हाई कोर्ट के अंदर, बट इसमें अपील फाइल नहीं हो सकती। 148 कहाँ अप्लाई नहीं होगा? मीन सीधा 148 में जंप कर सकते हो कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे सर्च है, सर्वे है, उन सब केसेस के अंदर अप्रूवल की जरूरत 148 का प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। या 135A का जहाँ पे स्कीम नोटिफाइड है उसमें कोई केस कवर है तो उसके अंदर भी आपको 148A का प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इस साल एक नया पॉइंट ऐड हुआ 148B, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट ऐड है और इसे वेलकम स्टेप। इन्होंने ये कहा कि नो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन अंडर दिस एक्ट shall be passed by an assessing officer below the rank of the joint commissioner in respect of an assessment year to which clause I or clause 2, 1, 2, 3, 4 explanation 2 to section 140 apply except with the prior approval। यानी कि सर के केसेस के अंदर जो ऑर्डर कोई पास करना है तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका? जॉइंट कमिश्नर का। ये 153D हमारे पुराना सेक्शन हुआ करता था सचिन में, वो सेक्शन अब ये यहाँ लेके आ गए, पहले सेक्शन यहाँ पे नहीं था। अब इसकी भी कहानी बहुत अच्छी है। अभी मैं सर्च हैंडल कर रहा हूँ, तो हमने जब फाइल इंस्पेक्ट करी तो हमने 153D का ऑर्डर नहीं मिला, हमने एक RTI फाइल करी, यार 153D का ऑर्डर फाइल में अवेलेबल नहीं, हमें तो RTI का जवाब आया कि सर ये ऑर्डर तो हमारे पास अवेलेबल फाइल में है ही नहीं, हम ढूंढ के देंगे। जब पास ही नहीं हुआ तो अवेलेबल कहाँ से होगा? और जब पास नहीं हुआ इट मींस द होल असेसमेंट इज बैड। देयर आर सो मेनी जजमेंट, यहाँ पे कहा गया है कि यदि 153D का ऑर्डर विदाउट द अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर पास हुआ है तो नल एंड वॉइड है। तो वो लॉ आज भी मेंटेन्ड है, इट मींस जो पहले लॉ था वो आज में कोई चेंज नहीं है। अब हम 149 की टाइम लिमिट की बात करते हैं। टाइम लिमिट टू इशू द नोटिस अंडर सेक्शन 148, इसको इन्होंने दो भागों में बांटा है, बेसिकली 3 years and 10 years। इन्होंने कहा नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 shall be issued for the relevant assessment year if 3 years have elapsed from the end of the relevant assessment year unless the case falls under clause B। B means 10 year, यानी कि 3 साल के बाद हो सकता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि 3 से 10 साल तक हो सकता है वो केस, लेकिन उसमें 4 जुरिडिक्शंस हैं। नंबर 1 कि there must be in a document in the possession of the assessing officer।
there must be documents, there must be books, there must be evidence. यानी जब तक ये एविडेंस नहीं होंगे तो 3 से 10 साल के बीच में केस नहीं खोला जा सकता. एंड दैट डॉक्यूमेंट मस्ट रिवील कि assets in the represented in the form of an assets or expenditure event के ऊपर has escaped assessment up to rupees 50 lakhs, 50 lakhs or more. यानी कि 50 लाख या उससे ऊपर का कोई एस्केपमेंट हुआ है जो कि रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट्स है या रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर्स है व्हिच हैज बीन इनकर्ड इन एन इवेंट और मैरिज इवेंट समथिंग लाइक दैट, देन 3 से 10 साल में केस खोला जा सकता है. अब यहाँ भी इन्होंने बड़ा वो किया चमत्कार. इन्होंने क्या किया, पहले जो प्रोविजन था वो था कि which have escaped assessment amounts to or likely to amount to 50 lakh rupees or more for that year. यानी कि इन्होंने पर ये 50 लाख की बात थी तो उन्होंने क्या किया, फॉर दैट ईयर हटा दिया. मीन्स कि यदि 3 या 4 साल में भी 50 लाख या उससे ऊपर की एस्केपमेंट है तो केस आपका खोल सकते हैं. तो इन्होंने अपनी पावर खोलने की ज्यादा बढ़ा दी और एक सेक्शन और भी लेके आए इसके लिए तो हम आगे पढ़ेंगे. अभी फिर एसेट्स का मीनिंग क्या है, इन्होंने कहा एसेट्स विल इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड, बिल्डिंग और बोथ, शेयर, सिक्योरिटी, लोन्स एंड एडवांस डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट. मैं इसके ऊपर एक जजमेंट शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ. बहुत ही अच्छा जजमेंट है गुवाहाटी हाई कोर्ट का. इनफैक्ट थोड़ा सा यहाँ आज सिस्टम्स में गड़बड़ है, नहीं तो मैं जजमेंट आपको पढ़ के भी सुनाता पूरा. एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक सेकंड. मैं आपको जाऊंगा नोट कर लो, आपको पहला रेलेवेंट रेफर कर दूंगा मैं आपको. फॉर्चून वनिंजिया प्राइवेट लिमिटेड, ये गुवाहाटी आईटीटी का है. एशियाटी वर्सेस फॉर्चून वनिंजिया प्राइवेट लिमिटेड, आईटी नंबर 21 ऑब्लिक गुवाहाटी हाई कोर्ट ऑब्लिक 2021. इसमें एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय एसेट्स फर्स्ट टाइम यूज नहीं हो रहा. ये 153 के अंदर भी ये वर्ड यूज हुआ है, रिप्रेजेंटेड बाय एसेट्स. और उसके रेफरेंस में यहाँ पे इन्होंने कहा कि व्हाट इज मीन बाय रिप्रेजेंटेड बाय एसेट्स. पैरा 2021 या पढ़िएगा, इसमें बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया व्हाट इज मीन बाय रिप्रेजेंटेड बाय एसेट्स. फिर इन्होंने कहा, अब इन्होंने इसके 148 कुछ प्रोविजो ऐड किए. पहला प्रोविजो क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें लगता है कि 10 साल तक केस खुल गया तो आज मैं 2022-23 तक हूं तो क्या मेरा केस 2013-14 में भी खुल सकता है? नहीं खुल सकता. ये फर्स्ट प्रोविजो लेके आए. इन्होंने कहा कि ऑन और बिफोर द असेसमेंट ईयर 21 यानी 21-22 असेसमेंट ईयर तक का यदि कोई भी केस खोलना हो और यदि मुझे आज खोलना होगा तो मैं कब तक खोल सकता हूँ, यानी कि अगर मैं आज 2022 मार्च में था तो मैं 1500 तक का केस खोल सकता हूँ पुराने लॉ के अंदर. तो इन्होंने कहा कि असेसमेंट 21-22 तक के जितने भी होंगे उनके लिए जो पुरानी टाइम लिमिट दे रखी थी 6 साल की 149B में वही एप्लीकेबल होगी. इट मीन्स आज की डेट में अब मैं 16-17 केस खोल सकता हूँ 6 साल बैक जाके, उससे पुराना केस नहीं खोल सकता. इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट 50 लाख से ऊपर होगा लिमिट दे रखी है. तो इट मीन्स कि हमारी जो पुराने असेसमेंट है 21-22 तक के केस के लिए जो है पुरानी टाइम लिमिट अप्लाई होगी 6 साल की. फिर उन्होंने कहा कि 153(3)(c)(3) है, जहां सब 31 मार्च से पहले हुई है 2021 से पहले वहां पुराना लॉ अप्लाई होगा और 31 मार्च के बाद जहां सर्च हुई है वहां पे नया लॉ अप्लाई होगा. आई विल रेफर सर आफ्टर द हियरिंग, मैं कर दूंगा आपको दोबारा से. फिर उन्होंने कहा कि 148 का जो नोटिस इश्यू हुआ है और उसमें जितना भी टाइम आपको मिला अपना रिप्लाई फाइल करने का, तो 148 का जो नोटिस हम इश्यू करेंगे उस टाइम को एक्सक्लूड कर देंगे लिमिटेशन से. इसलिए 148 का जो ऑर्डर पास हो उससे भी टाइम एक्सक्लूड जाएगा कि कोई कोर्ट का ऑर्डर है या जो टाइम आपको दिया गया. अब एक सेक्शन लेके आए इसके अंदर 1A में पढ़ना चाहूंगा 149 का. इन्होंने इसमें कहा कि कोई आप यहाँ पे ignoring anything contained in subsection 1 where the income chargeable to tax represented in the form of an asset, जो मैं कह रहा था, or expenditure in relation to an event or occasions of the value referred to in clause B of subsection 50 lakh or has escaped assessment and the investment in such assets
or expenditure in relation to such event occasion has been made or incurred in more than one previous years. The element to the expenditure, यानी कि एक से ज्यादा सालों में आपने कोई इन्वेस्टमेंट की किसी एसेट में एक्सपेंडिचर इनकर किया है जो 50 लाख से ऊपर है, तो हम सारे सालों के हिसाब से खोल सकते हैं। ये स्पेसिफिक प्रोविजन भी इसके लिए लिया है। स्पेसिफिक अथॉरिटी क्या 148 के अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, कमीशन डायरेक्टर 3 साल से आपसे कब केस खोलना। अब प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, वेयर देयर इज नो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल 3 साल से 10 साल खोलना। अभी मेरे दोस्त सुमित जैन, उन्होंने बड़ा क्वेश्चन अच्छा पुटअप किया और जो एक जुडिशियल पॉइंट को लेके आया सामने कि मान लो आपको 148 का नोटिस इशू हुआ 30 मार्च को और 7 दिन का टाइम दिया गया, तो 6 अप्रैल को तक आपने रिप्लाई फाइल करना था और आपका ऑर्डर 6 अप्रैल को पास हो गया 148 1D का। अब सवाल ये है वो 50 लाख से ऊपर की इनकम है। अब 50 लाख से ऊपर की इनकम है तो ये 7 दिन तो इंक्लूड हो जाएंगे और 148 इशू भी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे 3 साल तक दे सकता कमिश्नर और 3 साल से ऊपर चीफ कमिश्नर। तो यदि 50 लाख से ऊपर की लिमिट है तो 31 मार्च जो आपने टाइम एक्सक्लूड किया 7 दिन का, वो आपने एक्सक्लूड किया है 148 के नोटिस के लिए। लेकिन जो कमिश्नर का अप्रूवल है कि 3 साल की हद तक आपको देना कमिश्नर का और 3 साल से ऊपर देना चीफ कमिश्नर का, वो आपने उसको एक्सक्लूड नहीं किया, वहां पे आप ये प्रोविजन लेके नहीं आए। तो इन केसेस के अंदर जुडिशियल क्वेश्चन रेज होगा जो आने वाले टाइम में हम देखेंगे इसका कैसे इसको इंटरप्रेट करता है कोर्ट। विद दिस आई कंप्लीट माय प्रेजेंटेशंस। और इसके अंदर जो अब इशू ये हमारे सामने आ रहे हैं कि यार whether I should go for a writ against the notice जो 148 में मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी, मुझे 7 दिन का टाइम प्रॉपर नहीं मिला, मैंने जो बात कही थी वो कंसीडर नहीं की गई। तो जनरली रिट में तो आप जा सकते हैं, लेकिन रिट में होगा क्या कि हाई कोर्ट जनरली सेटबैक कर देंगे एओ को कि इनको अपॉर्चुनिटी दो, तो आपको वापस यहीं पे आना है। उससे बेटर तो ये कि आप उसको फर्दर अपील में उसको पॉइंट को लें, उसको रेज करें और आगे बढ़े। दूसरा इशू आपके सामने ये आ रहा है कि अब आपको असेसमेंट ऑर्डर आ गया। असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद आप करें क्या? तो इन माय व्यू इमीडिएटली आप अपील फाइल करें और 30 डेज के अंदर अपील आपको फाइल करनी है। 30 डेज के अंदर आपको स्टे भी अप्लाई करना है। फिर आपको ये भी लिखना है कि पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को स्टे किया जाए, तो ये सब एक्शन ले। कुछ एक क्वेश्चन मेरे पास आने के जो 154 क्यों ना मूव कर दे, बड़ी अपारेंट सी एरर है। 154 मूव करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन 154 का जनरल रिप्लाई 30 दिन के बाद आया, तो जो आपको टाइम अवेलेबल है 148 के 30 दिन का अपील फाइल करने का, वो लैप्स हो जाएगा, तो आप कंटिन्यूशन के लिए जाना पड़ेगा। तो इन दैट केस माय सजेशन इज आप अपील भी फाइल करो और अपील के साथ साथ आप 154 भी मूव करो और दोनों को लेके चलो। अगर आपको 154 का बेनिफिट मिल जाता है वेल एंड गुड, यानी कि राइट टू कमिश्नर के जी हमारी ये एरर थी, हमारे हमने ये को लिखा 154 में उसने हमें रिलीफ अलाउ कर दिए, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अपनी सब्जेक्ट को विड्रॉ करना चाहते हैं। हालांकि विड्रॉल की पावर कमिश्नर पे नहीं है, बट इन द फैक्ट्स ऑफ द केस वो आपको अलाउ कर देगा, मुझे लगता नहीं दिक्कत आएगी। तो विद दिस आई एंड माय प्रेजेंटेशन। आपकी जो भी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। आशा जी, Rasik Makkar sir want to ask something. I am unmuting him. Sir, please sir, ask your query. प्लीज। यस मनोज जी, एक क्वेरी ये है कि अगर पहली बात तो ये है कि ये 7 डेज का टाइम पीरियड हमारे को जो डिपार्टमेंट कह रहा है, ये अंडर व्हाट प्रोविजन इज 7 डेज का टाइम पीरियड, जबकि वो 148A में, हाँ 148A का जो टाइम पीरियड है वो तो 30 डेज का टाइम पीरियड आपको है, प्लस जब हमने रिप्लाई दिया उसके भी एंड ऑफ द मंथ नेक्स्ट मंथ के 30 डेज तक उनको देना है, तो ये बाय 7 डेज। नहीं, अगर आप 148 क्लोज भी पढ़ेंगे उसमें लिखा है 7 दिन मिनिमम, 30 दिन मैक्सिमम। यस, तो मतलब इसमें 7 डेज तो इन्होंने तो एक अपना नॉर्म बना लिया कि 7 डेज के अंदर हमें क्लोज करना है मैटर को। हाँ जी, यस। तो जबकि वो 7 डेज के अंदर तो ऐसा नहीं है, वो तो हम आगे तक एक्सटेंशन हो सकती है और अगले महीने की जब हमने रिप्लाई दिया तो अगले महीने के तक जा सकता है वो। Am I right that way? वो टाइम अलाउ कर सकता है आपको, उसमें पावर है उसके पास। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, रिचुअल की तरह काम कर रहे हैं सर्चिंग ऑफिसर
एक सफिशिएंट टाइम अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो से Okay. रिचुअल है कि 7 दिन का टाइम दो, 7 दिन का नोटिस दो और रिप्लाई दो, कंसीडर करना करो, नहीं तो ऑर्डर पास करो। जो अब एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन का वो फिनिश हो रहा है, राइट, वो अचीव नहीं हो रहा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेरी एक और आती है कि जब हम इसको सपोजिंग 148A का क्लोजर ऑर्डर आ गया, for हाँ। XYZ reason they have not considered our representations and without even giving any opportunity to close cut the order. Now, as per you, we have two options: go to High Court for a writ, or we go ahead with 148. Now, Yes. problem is कि जब अगर हम 149 के अंदर जाते हैं और हमारा asset represented, the income represented by asset is less than 50 lakhs, and we are falling under the clause B में हम करते हैं, जहाँ पर more than 3 years वाला टाइम पीरियड में हम आते हैं, तो हमारे को तो कोई चांस ही नहीं मिलता, फिर हमारे को उसमें तो हमें रिटर्न ही फाइल करनी पड़ेगी, प्लस हमें टैक्स भी देना पड़ेगा। नहीं, तो आपको क्वेश्चन मैं ये बोल रहा हूँ 148A का क्लोजर ऑर्डर आ गया और 148 का नोटिस भी इशू कर दिया उन्होंने। ओके, इफ वी डू नॉट गो टू द हाई कोर्ट अंडर रिट इन दिस सिनेरियो एंड वी फाइल 148 के अंदर, अगर हम रिप्लाई देते हैं कि हमारा केस जो है 149 में, हमारा वो जो 10 ईयर पीरियड वाला जो केस है जिसमें 50 लाख का एसेट रिप्रेजेंटेशन हमारी नहीं है, और हमने पहले भी दिया है और आज भी हम वही कह रहे हैं 50 लाख का नहीं है, even then they insist on the return and we have to file the return. We file the return, we have to then at the same time pay the taxes, which legally we are not supposed to do it, because हम उस पीरियड में, हमारा जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो हमारा 15-16 का टाइम पीरियड आ रहा है हमारा। So that means we are at a loss. Why should we be paying the taxes? जब हमारे को लॉ ही कहता है आपका 50 लाख से कम की एसेट्स आ रहे हैं, आपको नहीं पे करना है, आपको मतलब रिटर्न आप इस फॉल ही नहीं करते इस कैटेगरी में, तो आप चैलेंज करो ना हाई कोर्ट में उसको। तो वही मतलब हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा इसके लिए। नहीं, इसको आप हाई कोर्ट में चेंज कर सकते हो। जब ऑर्डर पास होता है, देखो आपको पहले तो यह है कि यदि आपको लगता है कि 50 लाख से कम है, अब सवाल पहले ये है कि आपकी इनकम एस्केप है या नहीं। यदि आपको लगता है इनकम एस्केप ही नहीं है तो आप 148 के टर्म्स ऑफ ऑफर करोगे नहीं। सर इनकम तो एस्केप है, लेकिन 50 लाख के क्राइटेरिया में हम नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रही ना, नहीं, तो फिर तो टाइम लिमिट आप कहते हो, आप टाइम लिमिट को चैलेंज कर रहे हो 149। हाँ, टाइम लिमिट की चैलेंज कर तो रहे हैं। हाई कोर्ट जाओ, आप हाई कोर्ट जा सकते हो, गो टू हाई कोर्ट। इट मींस 148 का कंप्लाई नहीं करना है वहां पे, उसके 148 में हमें रिटर्न नहीं फाइल करनी चाहिए। इट मींस आप हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट में रिट चैलेंज करो कि ये टाइम बार्ड है। बिकॉज हाई कोर्ट में भी वो वापस ही भेजते हैं कि आप नहीं सर, नहीं, नो लिमिटेशन के ऊपर नहीं भेजेंगे वापस आपको। यदि आप लिमिटेशन को चैलेंज करोगे तो नहीं भेजेंगे। हाँ, आप कहोगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो भेजेंगे। ओके, सो यू थिंक दैट लिमिटेशंस को चैलेंज होना चाहिए, बिकॉज हमारा तो टाइम लिमिट के अंदर 50 लाख में वी आर नॉट गेटिंग कवर्ड। अगर आप वो है तो आपका टाइम लिमिट, देखो लिमिटेशन इज जुडिशियल इशू, नॉन प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी इज अ सेपरेट इशू। because when we had given everything to the AO कि भी हमारी 50 लाख से नीचे आ रहा है, उन्होंने जब दिया तो there are problems with the bank has given wrong, then the bank gave a certificate कि okay इनका तो 50 से कमती है, प्रॉपर्टी बैंक ने सर्टिफिकेट दे दिया। हाँ, तो आप चैलेंज करो, तो चैलेंज करने की बात आ जाती है। ठीक है मनोज जी, थैंक यू। मनोज सर जी ऐसा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सुदेश जी का है चैट बॉक्स में। व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग रिट अंडर 148B ऑर्डर पास्ड फॉर रीओपनिंग? 4 मंथ है आई थिंक, चेक कर दूंगा मैं। आई रिट जनरली हम लोग फाइल नहीं करते, तो आई डोंट हैव द राइट नाउ आंसर, बट आई विल टेल द टाइम लेटर। और इनका एक और क्वेश्चन है, जुरिसडिक्शन चैलेंज इन रिट अलाउड और नॉट? बिल्कुल अलाउड, 100% अलाउड है। ये सुमित जी। ये अपील का टाइम पीरियड तो मुझे मालूम है 4 साल होता है, रिट का देखना पड़ेगा क्या टाइम पीरियड। आई वुड रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट्स कि आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। जैसा मनोज सर आपने भी बताया कि वो टाइम कम देते हैं, ऐसा हमारे खुद के केस में हो चुका है कि एडजर्नमेंट उसमें मांगी हुई है, उससे पहले वो
दूसरा नोटिस इशू कर देते हैं, अगेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मांगी हुई वो नहीं दिया, उससे पहले ऑर्डर इशू कर दिया उन्होंने। इवन हमारे केस तो एंड वीडियो ऑर्डर में कॉन्फ्रेंसिंग जो सबमिशन दिए कुछ नहीं उन्होंने उसको कंसीडर किया, 144 में पास कर दिया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे केस में पेनल्टी का ऑर्डर आया है, मैंने कहा जी मैं सीआईटी अपील तो ऑलरेडी हूँ, वो लिखते हैं कि आप लोग को रिप्लाई फाइल नहीं किया। आईटीआर के लिए लिख रहे हैं कि आईटीआर यू हैव नॉट फाइल्ड आईटीआर, और जबकि ई वेरीफाइड आईटीआर 148 में जो फाइल की थी वो सबमिशन में भी लगा के दी हुई है। आपसे बिल्कुल सहमत, तो लैपटॉप है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेयर टू चेक दैट अप्रूवल फ्रॉम प्रिंसिपल सीआईटी टेकन और नॉट। आप इसे मांग सकते हो, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स में मांग सकते हो कि बाई राइटिंग के जब मैं ये बताओ कि आपने अप्रूवल जो लिया है उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड करें। आशा जी, नेक्स्ट क्वेरी आपकी मिलन राजा जी की। मिलन राजा जी की क्वेरी है, इफ ऑनलाइन टाइम लिमिट ऑफ 7 days gone, then reply can done offline within 30 days or not। होता क्या है कि आप नहीं कर सकते, वो 7 दिन बाद ऑर्डर दे देगा आपको, 8वें दिन तो कंसीडर नहीं करेगा। देयर इज नो मैकेनिज्म, वो जनरली क्या होगा, विंडो बंद हो जाएगी, कोई आपको सुनाई नहीं होगी। आप देखो हाथों आप मार सकते हो, आप ग्रीवेंस में डाल दो एप्लीकेशन, आप अपने जुडिशियल हो सके मिल लो, वो कंसीडर कर ले तो बात अलग है, लो में कोई प्रोसेस नहीं है। बट अगर फेसलेस में हमारा चल रहा है देन वो ईमेल आईडी का भी रहता है ऑफलाइन, हाउ वी आर गोइंग टू सबमिट। मतलब मैं कह रहा हूँ आप करके देख लो। मैं जैसे हमको ने किया, हमने ऑफलाइन भी अप्लाई फाइल कर दिया, मेल भी कर दिया ईओ को, और ग्रीवेंस में भी डाल दिया, तो आप पर्सनली जाके मिल लो कि भाई सुन ले हमारी बात। मतलब चांस ले सकते हैं, चांस लेके देख लो कुछ होता है। whatever effort you can make, you should make. Yes, अनदर क्वेश्चन है ओजस्वी जी का, नोटिस इश्यूड टू डिसीज्ड, 3 years टाइम लिमिट एक्सपायर्ड ऑन 31st March 22 आई थिंक लिखना चाह रहे हैं, लीगल हेयर सिचुएशन इन दिस केस व्हेन इनकम इज मोर देन 50 लाख। ओजस्वी जी क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है आपका। आप ये मान के चलो डीसी को कोई भी नोटिस इशू होगा वो बैड हैंड लॉ है। नोटिस कैन नॉट बी इशू टू डिसीज पर्सन। ओके, तो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम नोटिस इशू होगा एंड देन लीगल हेयर पे असेसमेंट चल सकती है। अगर उस केस में जब नोटिस इशू हुआ पर्सन अलाइव था, उसके बाद उसकी डेथ होती है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, तो लीगल हायर की ड्यूटी बनती है कि जितने भी लीगल हायर्स है उनको उसके रिकॉर्ड पे लेके आएगा, उनको इन्फॉर्म करें कि हमें सारे लीगल हायर है। देन यू विल ब्रिंग ऑल दो लीगल हायर्स ऑन रिकॉर्ड, उनको सबको नोटिस इशू करेगा, देन वन ऑफ देम विल बी डिसाइड किया जाएगा, और उसके बाद उसके नाम से प्रोसीडिंग की जाएगी जो 159 में प्रोसेस दे रखा है। तो ओजस्वी जी अगर आपकी क्वेरी हो गई है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्वेश्चन रीफ्रेम कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेरी है सर उमेश जी की, in our case we have asked for principal CIT approval, AO had not provided the same and order passed under 148A clause D। आप उस केस के अंदर जब ऑर्डर पास हो जाता है, रिकॉर्ड आएगी जुडिशियल ईओ के पास, आप वहां पे आरटीआई लगाओ इन सब रिकॉर्ड्स के लिए, यू कैन फाइल द आरटीआई एंड दे आर बाउंड टू प्रोवाइड यू। इनफैक्ट अपनी लाइफ के अंदर मैंने काफी केस जो क्रैश कराए, उनका जो क्रेडिट जाता है आरटीआई को जाता है। आरटीआई में हमने कहा जी ये सिचुएशन है, उन्होंने कन्फेस कर लिया सिचुएशन, जैसे अभी हमने बताया कि 153D का ऑर्डर नहीं है, उन्होंने कन्फेस कर लिया 153D का ऑर्डर नहीं है। ऐसे फाइल ट्रांसफर हुई थी एओ से सीआईटी को असेसमेंट के दौरान, हमने कहा जी 127 का ऑर्डर दो, बोले है ही नहीं 127 का ऑर्डर, आरटीआई में लिख दिया ऑर्डर को इशू है। तो आरटीआई कैन बी अ गुड रूट। यस। सुदेश जी पूछ रहे हैं, हाउ एओ विल नो असेसी इज डिसीज्ड बिफोर इशूइंग नोटिस। आपको नोटिस आपको इन्फॉर्म करना चाहिए इन माय व्यू। अगर असेस देखो, देयर आर टू थिंग्स, अगर देखो अगर इंडिविजुअल्स है और उसकी डेथ हो गई है, कायदा तो ये बनता है कि हम असेसिंग ऑफिसर को लेटर डाल देंगे इसकी डेथ हो गई है, इसका पेमेंट सरेंडर करा दें उसी टाइम। यदि नहीं कराया है तो भी ऐसा लॉ में कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि डिसीज पर्सन के बारे में डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाए। तो देयर आर जजमेंट्स जो कहते हैं कि इवन इफ इट इज नॉट इन्फॉर्म बट स्टिल द असेसमेंट कैन नॉट बी मेड इन द और नोटिस कैन नॉट बी इशूड टू द डेड पर्सन। कि लॉ में कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ओके,
Sir, next question is Sahil Mangla ji ka. Show cause notice for 148 mentioned addition under section 68, but in assessment order, addition done in 69A, unexplained money. Although all details were provided, but AO rejected the details as bogus and did addition under 69A. Can this be challenged in writ on the basis that AO has gone out of the show cause notice in the final assessment order? देखो एक बात बताऊं, ये रिओपनिंग का केस है, 143 का केस है, 147 का केस है. Sahil ji, if you can. Sir, 147. 147 में क्या लिखा था? वहां तो लिखा ही नहीं होगा 168 या 69 है. देखो शो कॉज नोटिस में लिखा है कि 68 में SCN है. में लिखा है ना. Yes, yes. मेरे ख्याल से देखो इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं. इट मे बी क्वेस्ट और इट मे बी सेंड बैक टू द AO फॉर रीअसेसमेंट कि वो 68 में किया जाए. असल में जो शोकॉज नोटिस होता है ना, इट्स लाइक प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, और जहाँ पे डेफिशिएंसी अपॉर्चुनिटी है वहां पे कई बार दोबारा से अपॉर्चुनिटी दे दी जाती है. तो और अगर इसको आप CIT अपील के पास जाएंगे तो CIT अपील तो इसके अंदर क्या करेगा, सेक्शन चेंज करने की पावर है, उसके अंदर को टर्मिनस पावर है, तो वो उसको 69 प्रॉपर कर सकता है. आपको गलत लगता है तो आई थिंक इस पे जुडिशनली आपका खत्म हो पाएगा. आई एम डाउटफुल. हाँ, आप ये कह सकते हैं कि स्टेट MM एडिशन नहीं बनता, वो आप चैलेंज कर सकते हैं. इसमें इट मींस कि जो ज्यादा चांसेस होंगे रिट अगर हम फाइल करते हैं, इवन देन कि वो सेंड बैक ही होगा आपके अपॉर्चुनिटी के साथ रीअसेस. हाँ सर, सुदेश जी पूछ रहे हैं RTI ऑनलाइन लगेगी या ऑफलाइन लगेगी? कुछ अगर इस पे थोड़ा ऑफलाइन लगा दो और ऑनलाइन भी आप फाइल कर सकते हो, दोनों तरह से फाइल कर सकते हो. बेटर है अभी ऑफलाइन फाइल करो, अफसर के पास जाके फाइल करो, वो मना थोड़ी वहाँ फाइल करने से. अब तो खुल गया है यहाँ पे, विकास भवन भी खुल गया, ITO भी खुला हुआ है, जाओ और फाइल करो. संजीव जैन जी पूछ रहे हैं कि माय वार्ड इज 2 बट 148A नोटिस इशूड बाय वार्ड नंबर 4, देन इज दिस नोटिस वैलिड और इनवैलिड? आप पहले चैलेंज करो जुडिक्शन को. 124 सबसेक्शन 3 कहता है कि यदि किसी रॉन्ग वार्ड से नोटिस इशू हुआ है तो आप उसे चैलेंज करोगे. चैलेंज करके आप पहले एक अपॉर्चुनिटी दो कि आपने गलत तो फाइल किया है, एंड उसके बाद असेसमेंट कराओ. यदि वार्ड 1 ही करता है और आप मानते 2 में है तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा. वो हायर अथॉरिटी कि आपके पास जुडिक्शन ही नहीं था, आप असेस ही नहीं कर सकते. और वैसे 148 केस में जब रिटर्न फाइल कर रखी है तो 124(3) के अंदर उसको 1 मंथ के अंदर ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत भी नहीं है. मैं तो कहूँगा चुपचाप असेसमेंट कराओ और आगे चैलेंज करो अपील के अंदर उसको. ये अल्टीमेटली क्वेश्चन है. सुदेश जी की क्वेरी भी सिमिलर लाइंस पे है. नोटिस इशूड बाय बैंगलोर AO बट SSC लोकेटेड इन गुड़गांव एंड पैन एंड Directions ITR related, I think. हाँ, same. तो सिमिलर है. ऑलरेडी आंसर्ड. जहाँ भी लोग अफसर देता है अफसर, तो वो जुडिक्शन लैग करता है. अगर टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है उस साल की तो आप रिट में चले जाओ, और टाइम लिमिट खत्म नहीं हुई है तो पहले अपील में जाके टाइम लिमिट खत्म होने दो और उसको चैलेंज करो. Next is where the writ is maintainable with Punjab and Haryana High Court और कर्नाटका हाई कोर्ट. ओके, इनका पहले जो क्वेश्चन था कि नोटिस इशू हुआ है बैंगलोर AO से बट SSC लोकेटेड इन गुड़गांव और पैन और ITR पे एड्रेस गुड़गांव का है, then whether the writ is maintainable with Punjab and Haryana High Court और कर्नाटका है. पहले तो टू अर्ली हो जाएगा ना, तो आप ऑर्डर तो पास होने तो अभी आप ऑब्जेक्शन तो रेज करो. आप पहले तो उसको ऑब्जेक्शन तो डिस्पोज ऑफ करने दो ना, नहीं तो जुडिक्शन अगर खाली नोटिस के बेस पे जाओगे तो कर्नाटक हाई कोर्ट की बनेगी. सर वो लिख रहे हैं ऑर्डर पास हो चुका है. ऑर्डर पास ऑलरेडी. ऑर्डर किसने पास किया है? ऑर्डर कर्नाटक ने किया, दिल्ली में हुआ है? कर्नाटका. तो कर्नाटक में रिट बनेगी. एंड सर इन केस अगर ऑर्डर पास नहीं हुआ होता और वो नोटिस कोई चैलेंज कर रहे हैं, इन दैट केस कहाँ पे रिट मेंटेनेबल होगा? तो जहाँ से नोटिस इशू है वहीं से होगा चैलेंज. ओके, मतलब इन दैट केस आल्सो इट वाज कर्नाटका हाई कोर्ट. Karnataka. ओके. हाँ, अगर ये ऑर्डर बाद में दिल्ली में पास हुआ होता तो फिर दिल्ली में रिट आती. तो दिल्ली में कोर्ट फाइल. ऑफ एक्शन कहाँ पर है? कोर्ट ऑफ एक्शन जिस चीज का वहाँ पर होगा. Right. Sir, I think all query has been covered. Wonderfully We covered don't by have any Manoj sir. other queries. So If anyone else who want to
ask और इसी anything? कोई जो क्वेरी तो एक्चुअली बहुत सारी क्वेरी फैक्ट बेस होती हैं, थोड़ा Yes. सा फैक्ट पे होने पे इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, तो देखो कॉल में। Tomorrow we have a session on practical approach to handle notices issued by reassessment by Prakash Sinha ji. So today's wonderful session. Milan Raja ji, last एक query. query आई है. Can be filed online and need to apply offline, अपील कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन or need to apply offline? नहीं ऑनलाइन, अपील ऑनलाइन। Online sir, online. Right. सर स्टे ऑफ डिमांड के लिए हमें किस टाइम पर, जैसे ऑर्डर पास हो गया उसमें डिमांड रेज हो गई है विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, और स्टे ऑफ डिमांड का प्रोसीजर ऑनलाइन है या मैनुअली एओ के पास हमें देख के आना है, जुरिसडिक्शनल एओ के पास? देखो आप दोनों प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। बिकॉज मुझे ऑनलाइन में में मिला नहीं कुछ प्रोसीजर नहीं, कैसे भरना है। और मैं बताता हूँ, ऑनलाइन में ना एक तो आपके पास जो आपका जुडिशन होता है, जहाँ प्रोफाइल होता है, वहाँ पे एओ की ईमेल आईडी होती है, और एक वहाँ पे सिमिलरली ग्रीवेंस सेल में भी दे रखा है जिसके थ्रू आप जा सकते हो। तो 2-3 ऑप्शन है जिसके थ्रू आप जाके अपनी ऑनलाइन वो फाइल कर सकते हो। ठीक है सर, आपने एक केस बताया था, उसका एक बार नाम रिपीट कर देंगे प्लीज? वो फॉर्च्यून गुवाहाटी हाई कोर्ट। मैं मेल कर दूंगा। ठीक है सर। मेरी प्रेजेंटेशन दूंगा, एक्चुअली आज डिस्प्ले नहीं कर पाया, वो लैपटॉप में नो सर आप शेयर कर दीजिएगा, आई विल पोस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन सबके हैं, आई विल शेयर टू एवरीवन, and I request for Asa ji to say formally vote of thanks. Thank you so much, Manu sir, for elaborating on this very technical 148 and 148A section, and taking all the queries and answering all the questions. Thank you all the participants for joining us. We hope कि आप कल फिर से हमें join करेंगे, and with all the more queries. And with this, thank you everyone. Thank you Manu sir, Thank you. thank you Sachin ji, Asha ji. Thank you everyone. Thank Nitin you. ji बिल्कुल भेज दूंगा मैं इसका लिंक, and presentation will also be shared to everyone. Thank you.